Good morning, students. Today I am going to discuss the numerical on waves. Right, students? First question is, a wave traveling along a string is described by this equation: y equal to 0.05 sine of 80x minus 380, in which calculate the amplitude, wavelength, time period and frequency of the wave. So student, here equation is y is a function of x and t. So it is 0.005 sine of 80x minus 3t. Now you can compare it with standard equation. This is r sine kx minus omega t. You can change it. You can either write it as omega t minus kx, or you can say it is kx minus omega t. Now if you compare these two, then what is the amplitude? Amplitude is r. Amplitude is this r. This is 0.005 meter. And what is k? K is 80. What is k? It is 2 pi by lambda is equal to 80. So lambda is equal to 2 pi by 80. This is lambda equal to pi by 440 meters. Now what is omega? Omega is equal to 3, and it is 2 pi into nu. So nu equal to 3 divided by 2 pi. And what is this 1 by t? This is 3 by 2 pi. So time period become equal to 2 pi by 3 seconds. So next you have to calculate these things: wavelength, frequency, and this is in hertz. Right. Now the next question is we have to discuss about the different modes of vibration in strings, in open organ pipe, and in this speed of sound. Next question is, find the frequency of note emitted by a string of length 10 root 10 centimeter under the tension of this. Radius of the string is this and density is this. It means we have to use length is 10 root 10 centimeter, right? And what is the, this is, आप इसको सेंटीमीटर में है, मीटर में चेंज करोगे. दिस इज 10 इंटू, दिस इज 0.1 इंटू रूट 10 मीटर. राइट, वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी. फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट. तो हम इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वी विल कैलकुलेट. व्हाट वी विल कैलकुलेट? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. राइट, दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, टेंशन कितनी है? 3.14 kg. दिस इज 3.14 इंटू जी, क्योंकि टेंशन आपका होता है वेट. दिस इज m इंटू जी. दिस इज 3.14 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड. तो अब इसमें आप क्या लगाएंगे? दिस इज न्यू इज इक्वल टू, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग? लेंथ it is given, radius is 0.5 millimeter, that is 10 raised to the power minus 3. Density is 9.8 into gram per cc. You have to change it into kilogram per meter cube. Now we have to use this formula. Frequency, fundamental frequency is 1 by L into D under the root of T by, this is pi into rho. Student, we have discussed this formula in this term. Frequency is 1 by 2L under the root of T by m. फिर हमने एक लॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग पढ़े थे, जहाँ हमने मास पर यूनिट लेंथ को डेंसिटी की टर्म में एक्सप्रेस किया था. यू हैव टू पुट द वैल्यूज. लेंथ इज 0.1 इंटू रूट 10. दिस इज पाई इंटू आर स्क्वायर. टेंशन इज 3.14 इंटू 9.8. दिस इज पाई 9.8 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3. तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. दिस इज रूट 10 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर. तो रूट 10 क्यूब आ जाएगा. जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है. इट कम्स आउट टू बी 100 हर्ट्स. फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी 100 हर्ट्स. फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट का मतलब पाई आप पुट कर लेना 3.14, और रेडियस आपको गिवन है, दिस इज 0.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर minus 3 meter. राइट, बिकॉज रेडियस ऑफ दिस इज 0.5. दिस इज okay. We have to take here, not here, we have to take the diameter. This is 2r, right? Note we will use here, this is 2r, right? Pi नहीं use होगा, pi आपका फिर cancel हो जाएगा, because diameter is this, not the area. I have considered it as area. This is diameter. Diameter is twice of radius, so you have to put here twice of
radius, not pi r square. Make this correction. Now the next question is question number 3. In question number 3, it is given to you the fundamental frequency of a closed organ pipe. Question is, the fundamental frequency of a closed organ pipe is equal to first overtone frequency of an open organ pipe. ठीक है. If the length of the organ open pipe is 60 centimeter, what is the length of closed pipe? Student, इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें फॉर्मूले पता होने चाहिए. What is the fundamental frequency of closed organ pipe? For closed organ pipe, हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या निकाली थी? दिस इज v बाय 2l, दिस इज L1. ठीक है, ये आपकी आ गई. अब पूछा है इट इज इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप. और ओपन ऑर्गन, दिस इज फॉर अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इट इज 4 v डिवाइड बाय 4L1. एंड फॉर ओपन ऑर्गन पाइप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज nu1 इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू v डिवाइड बाई 2L1. और आपको दिया फर्स्ट ओवरटोन. फर्स्ट ओवरटोन का मतलब होता है आपकी सेकेंड फ्रीक्वेंसी. दिस इज ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. इसमें आपके इंटीग्रल मल्टीपल चलते हैं, राइट. 2 डिवाइड बाई v बाई 2L1, दिस गेट कैंसिल आउट एंड इट इज इक्वल टू v बाई L1. फर्स्ट ओवरटोन इज nu2. अब ऑर्गन, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की और फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी मैच करती है. इट इज गिवन टू यू v by 4L1. This is according to question. This is for organ pipe, open organ pipe, and this is for closed organ pipe. v by 4L1, इसकी हम लेंथ L2 ले लेते हैं. This is L2, right? This is equal to v by L2. It get cancel out and this is given to you. Length ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज 60, यानी L2 आपको कितनी दी हुई है, 1/60 इज इक्वल टू 1/4L1. तो ये आ गया आपके पास L1 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो आपको पहले पता होना चाहिए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज़ v बाय 4L. ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है v बाय 2L2. और फिर आपने इन दोनों को क्या करना है, और गिवन क्या है क्वेश्चन में, फर्स्ट ओवरटोन. फर्स्ट ओवरटोन यानी सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक. और सेकेंड हार्मोनिक में ये कितना आता है आपका 2nu1. दिस इज v बाय L2. फिर दोनों को आपने इक्वेट करना और वहाँ से आपका रिजल्ट आएगा, राइट. तो L1 कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4. अ पाइप 30 सेंटीमीटर इज लॉन्ग, ओपन एट बोथ द एंड्स. विच हार्मोनिक मोड ऑफ द पाइप रेजोनेट विद 1.1 किलोहर्ट्ज सोर्स. पहले इतना ही करते हैं. अ पाइप 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ओपन एट बोथ द एंड्स. क्या है, ओपन एट both the ends. Which harmonic mode of this vibrates with the 1.1 kilohertz source. तो पहले open at both the ends में हमारे जो fundamental, ये n times of nu1 बनता है. frequency of this mode of vibration is n times of fundamental frequency. आपको frequency कितनी दी हुई है, 1.1 into 10 raised to the power 3 और n times of this is v divided by 2L, जो आपको लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप दी हुई है, राइट. तो अब आपको यहाँ पर वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 330 मीटर पर सेकेंड. और आप इसमें क्या करेंगे, इस लेंथ को आप चेंज करेंगे. 30 सेंटीमीटर है तो लेंथ इज 30 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2. तो अब यहाँ से आप n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो 1.1 ये कितना आ जाएगा, 11 बाय 1100. n आपको निकालना है. दिस इज 330 और दिस इज 2 इंटू 30 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2 आ जाएगा. ये आपका आ गया 100 और ये हो गया 11 से कैंसिल करें, दिस इज 30. ठीक, तो अब ये आ गया आपका 100 इंटू, ये 30 से 30 कैंसिल हो गया. तो n कितना आ गया, 200 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2. दिस n बिकम्स इक्वल टू 2. यानी कौन सी हार्मोनिक से वाइब्रेट करेगा, सेकेंड हार्मोनिक से रेजोनेट करेगा, right. If which harmonic mode of the pipe resonate with this frequency. So second harmonic resonate with this frequency. Resonates का मतलब वो उससे मैच हो जाएगी with this
फ्रीक्वेंसी, इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ मैच हो जाएगी. अब बोला विल द रेजोनेंस विद द सेम सोर्स इज ऑब्जर्व्ड इफ वन एंड ऑफ द पाइप इज क्लोज्ड. अगर आपका एंड क्लोज्ड है, अगर क्लोज्ड एंड है, इफ एंड ऑफ द पाइप इज क्लोज्ड, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, न्यू वन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए जो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 4V इक्वल टू न्यू वन इक्वल टू V अपॉन 4L. ठीक है, V कितना है 330 और ये है 4 इंटू 30 डिवाइड बाय 100. तो यहाँ से आपका ये कैंसिल हुआ, ये आएगा आपके पास 3110, तो ये आ जाएगी 1100 डिवाइड बाय 4. राइट, तो अब यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपका 275 हर्ट्स. तो हेयर इट डज नॉट मैच, हेयर दिस फ्रीक्वेंसी नॉट मैच. अगर हम आगे इसका नेक्स्ट हार्मोनिक भी कैलकुलेट कर लें, राइट, सेकेंड हार्मोनिक देखें, सेकेंड हार्मोनिक कितना आएगा, दिस इज सेकेंड हार्मोनिक. अगर हम देखें तो इसमें होता है थ्राइस ऑफ न्यू वन, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 275, दिस इज इक्वल टू 825 हर्ट्स. और अगर हम इसमें थर्ड हार्मोनिक तो इसमें आपका ये थर्ड हार्मोनिक होगा, दिस इज थर्ड हार्मोनिक एंड दिस इज नेक्स्ट होगा फिफ्थ हार्मोनिक, क्योंकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में आपका आता ही फिफ्थ. और दिस इज 5 टाइम्स ऑफ न्यू वन, दिस इज 5 इंटू 275, इट कम्स आउट टू बी 1375 हर्ट्स. तो ये किसी भी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रहा, तो इट डज नॉट, देयरफॉर नो रेजोनेंस कैन अकर. हेंस विद दिस फ्रीक्वेंसी नो रेजोनेंस अकर, नो रेजोनेंस अकर. इस फ्रीक्वेंसी के साथ आपका कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा. इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टील रोड. ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चंस यू हैव टू डू, नॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड. अ स्टील रोड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग इज क्लैम्प्ड एट इट्स मिडल. राइट, एक ये स्टील की रोड है तो जो सेंटर में क्लैम्प्ड है, यानी ये आपका नोड वाला पॉइंट बनेगा. द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ द रोड इज गिवन बाय 2.53 किलो हर्ट्स. व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील. तो आपका ये इस तरह का मोड ऑफ वाइब्रेशन ओपन ऑर्गन पाइप की तरह. तो इसमें आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दिस इज V डिवाइड बाय 2L. राइट, तो अब आपको ये दी हुई है 2.53 इंटू 10⁻³ तो V डिवाइड बाय V आपको कैलकुलेट करनी है. लेंथ आपको कितनी दी हुई है 100 इंटू 10⁻⁻2, 100 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स 1 मीटर. ठीक, तो आपके पास ये कितना आएगा, 2 3 ज़ा 6 10 एंड दिस इज 5.0 इंटू 10⁻³ तो आपके पास ये जो आपकी आएगी, दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील, 5.06 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड. बिकॉज ये एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह बनेगा, सॉलिड है, ये स्टील की रोड है, तो यहाँ पर फर्स्ट नोड बन रहा है. तो ये कौन सी बन गई, ओपन ऑर्गन पाइप. ये हमने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में डिस्कस किए थे. राइट, अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है अ पाइप 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट इज़ क्लोज्ड एट वन एंड, क्लोज्ड एट वन एंड यानी क्लोज्ड. और विच हार्मोनिक मोड ऑफ पाइप इज रेजोनेंटली एक्साइटेड बाय 430 हर्ट्ज सोर्स. स्टूडेंट अब इसमें ध्यान रखना, जो आपका क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स होते हैं इसमें ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ आपके जो बनते हैं फ्रीक्वेंसीज, पहला न्यू वन, फिर थ्राइस ऑफ न्यू वन, थ्राइस न्यू वन, फिर 5 न्यू वन, इस तरह से बनते हैं. तो हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं, इट इज़ 2n-1 इंटू V डिवाइड बाय 4L. इसको मैंने जनरलाइज कर लिया. राइट, अब आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 430 हर्ट्स, आपको n कैलकुलेट करना है, स्पीड ऑफ साउंड 340 है, लेंथ आपको कितनी दी हुई है, लेंथ इज़ 4 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻². तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे, n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और 2n इज इक्वल टू ये आएगा आपके पास 2.02 जब सॉल्व करेंगे n आएगा 1.01, तो ये आएगा n इक्वल टू 1. तो 430 हर्ट्स के कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट हार्मोनिक, कौन सा, फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक कॉरस्पॉन्ड्स टू, first harmonic resonates with
430 हर्ट्स, यानी यहाँ फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी. अब नेक्स्ट आता है, विल दिस सोर्स बी इन रेजोनेंस विद द पाइप इफ बोथ द एंड्स आर ओपन. इफ बोथ द एंड्स आर ओपन देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी बिकम, दिस इज एन. वहाँ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के. फॉर ओपन ऑर्गन पाइप न्यू एन इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ न्यू एल. ये कितना है 430, दिस इज एन. वी इज 340. अब यहाँ से एल कितना है आपका, दिस इज लेंथ ऑफ रॉड इज 20 सेंटीमीटर, दिस इज 20 इंटू 10⁻⁻². तो यहाँ से जब आप n कैलकुलेट करोगे n आएगा 0.5. तो n 0.5 का मतलब इट डज नॉट कोइंसाइड. हाफ मोड ऑफ वाइब्रेशन तो होता नहीं है, या 1 होता है या 2 होता है. सो इट डज नॉट. So this source, will this source be in resonance with the pipe? So this source will not be in resonance with the pipe. Right student? तो जैसे कि यहाँ 1.01 था तो हमने इसको कह दिया फर्स्ट मोड, लेकिन यहाँ n कितना आ रहा है 0.5. So for this it is not possible. Okay, thank you. So you can do the practice of such questions.